Hello and welcome to JKC's English Bulletin. I am Myra. Let's begin with the headlines first. Lieutenant Governor Manoj Sinha reviews the action plan for the restoration, conservation and maintenance of ancient cultural heritage in Jammu and Kashmir. Many high officials were present with him. Road accident occurred on Srinagar-Bandipora road. Scooter rider dies on the spot after being hit by truck. Accident occurred in Samba. 4 people including 3 children died, 14 injured. Jammu-Srinagar highway closed again after landslide. Many vehicles stuck on the way. And there is happiness in BJP on Draupadi Murmu becoming the president. Celebrations are being held from place to place. Now news in detail. Lieutenant Governor Manoj Sinha today chaired a meeting to review the action plan for effective implementation of the scheme Revival, Restoration, Conservation and Maintenance of Ancient Cultural Heritage in Jammu and Kashmir. Speaking on the occasion, Lieutenant Governor directed the Culture Department to adopt value-based conservation with the help of experts. During this, Arun Kumar Mehta, Chief Secretary Nitishwar Kumar, Principal Secretary and other senior officials were also present there. Scooter rider died on the spot after being hit by a truck on Srinagar-Bandipora road near Shadipura area. The deceased has been identified as Tosif Ahmad Garu, who is 21 years old, resident of Naninara, Sumbal. At the same time, the body of the deceased has been handed over the family for the last rites after medical formalities from CHC Sumbal. Four people including 3 children were died and 14 were seriously injured in a collision between a truck and a passenger auto near the main square of Samba city on the Jammu-Pathankot National Highway last late night. After that, they were referred to GMC Jammu. Police registered a case and started action. According to the information, all these people boarded an auto from Mandal village of district Samba and attended the wedding ceremony in the border village of Samba. In between, their auto and truck collided strongly. The accident was so terrible that all these people got stuck in the middle of the auto, transported to district hospital Samba, where doctors declared 4 dead while 7 were referred to GMC Jammu in view of their critical condition. At the same time, Deputy Commissioner Samba Anuradha Gupta also reached the hospital late in the night and assured better treatment.
The highway connecting the Kashmir Valley with other states of the country has once again been closed after a landslide. After incessant rains since morning, the movement of vehicles on the highway has been stopped due to landslides at many places between district Ramban and Banihal. More than 3,000 vehicles are stranded on the highway. The traffic department has instructed the people not to approach the hilly areas till the weather is clear. The work of clearing the highway is going on. There is happiness in the BJP on Draupadi Murmu becoming the president. The victory is being celebrated like a celebration by the BJP from place to place. In the same series, today a function was organized by Ajay Gupta, chairman of Social Justice of Jammu Municipal Corporation and councillor of Ward number 52 in Bhagat Mandi, in which sweets were distributed in the happiness of this victory, and Murmu was congratulated. He said that this is a moment of happiness and pride for the entire country. में यहाँ आज एक भंडारे का आयोजन किया गया है और ये भंडारा हमारी राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू जी की खुशी में, जिनको आज राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है, वो और बहुत प्रचंड जीत के साथ वो जीती हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारतवर्ष को इसकी मुबारकबाद देते हैं। जिन सहयोगियों ने इनमें भागीदारी की है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और मेरी टीम जो वार्ड 52 तरकोटा नगर जम्मू, जो मेरी टीम इसमें भाग ले रही है, वो खुशी के साथ लोगों को मिष्ठान बांटते हुए आज इस खुशी का इजहार कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। Demonstration was held today by the High Court Bar Association regarding their demands. The protesters expressed displeasure over their demands. Association President M.K. Bhardwaj said that he has some issues regarding which he had also met with the Lieutenant Governor, but demands have not been considered yet, due to which today they left the work and went on strike. At the same time, when physical hearing is going on everywhere, the Central Administrative Tribunal Court is still running online. They demanded to look into all the demands. फैसला किया था कि हम कोर्ट प्रिमिसेस में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि आज हाई कोर्ट में सैटरडे को छुट्टी होती है, इसलिए हम यहाँ पे धरना देंगे। तो उसी डिसीजन के मुताबिक आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारी डिमांड्स बिल्कुल क्लियर हैं। अभी जलमेरिया साहब इस धरने को एड्रेस कर रहे थे, तो अपने एड्रेस में इन्होंने बेइंसाफ़ी की बात की। हमारे साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो बार एसोसिएशन के मेंबर्स को हुआ है वो है रजिस्ट्रेशन वर्क। हमारा रजिस्ट्रेशन वर्क जो पहले जुडिशरी के पास था, वहाँ से निकल के रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास चला गया और आज सब रजिस्ट्रार्स के ऑफिसेज डिफरेंट लोकेशंस पे सिचुएटेड है। दूसरी जो हमें मेन प्रॉब्लम हुई वो सर्विस मैटर्स की है। उसके साथ हमारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का एक डिस्प्यूट है। पहले सारे रिकवरी सूट्स जो हैं वो सिविल कोर्ट्स के पास फाइल होते थे, यहीं पे डिफेंड होते थे, वो यहाँ से निकल के चले गए। अब वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बन गया है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जम्मू में कभी उसकी कोई रूटीन में या रेगुलर कोई सिटिंग नहीं होती। ट्रिब्यूनल का बेंच जो है वो चंडीगढ़ में है और लोगों का कहना ये है कि वहाँ भी अगर बेंच में आप जाओ तो वहाँ प्रॉपर जो जजेस हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये और बड़े आराम से मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स यहाँ बन सकता है। मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो हमारे मसाइल जो हैं बड़े आराम से हल हो जाएंगे। आज प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? नहीं, आज का हमारा प्रोग्राम ही धरने का था। कल प्रदर्शन था, कल हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन करनी थी, प्रोसेशन निकालना था। आज धरने का प्रोग्राम था। Even today in the rain, the candidates of Finance Account Assistant demonstrated for their demands in Jammu. The protesters expressed their anger by raising slogans. On this occasion, the parents of the candidates were also present with them, who demanded justice for them. The protesters said that they had studied for their examination after spending many years, and in the end they are being told that it will be scrapped, which is absolutely not justice. They expressed their displeasure over this. It has not been clarified what is being done. In this context,
the government made only one tweet in which nothing has been told clearly. They demanded that action should be taken against the culprits, but the list should not be scrapped. 370 और 35 की मनसूखी बड़े दावे किए थे। मैं यही कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि बच्चों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए, बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए सर। हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए, हमें अपने बच्चों की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही। हम घर पे बैठे जब इन्हें देख रहे हैं तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये हमारे बच्चे जब रात भर पढ़ते थे, हमें वो चीज़ भी बहुत बुरी लगती थी जब हमें सुबह इनकी लाल आंखें दिखती थी, और हम उस चीज़ को देख के भी हम इनको बोलते थे कि आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी। मगर आज पता चल रहा है कि इनकी मेहनत रोड पे आ गई, ये रोड पे बैठ गए आज इतनी मेहनत करने के बाद भी। और बच्चे 10 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ, प्रशासन को नहीं दिख रहा है कि बच्चों की क्या हालत बन गई है। अगर कल से किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो हम तो अपने बच्चों को ये गाइडेंस दे रहे हैं, अब क्या आप एक काम करो, रेडी लगाओ, रेडी चलाओ, अब पढ़ो मत। अब हमारा 10वां दिन है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। यहाँ पे मजबूर कर रहे हैं हमें इस बारिश में धूप में आने के लिए, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जवाब हमें अभी तक नहीं पहुंचा, जिस वजह से हम कंटिन्यू यहाँ पे प्रदर्शन करते जा रहे हैं। और आज इतना मजबूर हो गए कि पेरेंट्स हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, जो कैंडिडेट्स अपने बच्चों को घर छोड़ के, जो लास्ट अपने वो एजेस में ना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बच्चों को घर छोड़ के यहाँ पे आते थे, आज वो बच्चों को यहाँ पे साथ लेके आए हुए हैं। बहुत ही शर्म की बात है, रोना भी आ रहा है कि हम अपने माँ बाप को इधर लाया, बट क्या करें, अपने हक के लिए माँ बाप मजबूर हो गए हमें देख के। यहाँ पे कल यहाँ पे लड़का फेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज था। उसके बाद एक लड़की, उसको ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज हुआ है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से कोई बंदा हमारे पास नहीं आ रहा है। सर, एक ही सवाल है हमारा, अगर हमारे पे कुछ भी था जब रिजल्ट आया, जैसे सब इंस्पेक्टर का आया, तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 महीने तक चली, आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? और आज आपको अचानक से लगता है कि सब इंस्पेक्टर में, जिसमें ओपनली दिख रहा था खुलेआम धांधलियाँ हुई हैं, ओपन था सारा कुछ, मैं उसमें खुद था सर, मैंने शोर नहीं उठाया। हाँ, मेरे साथ गलत हुआ, स्क्रैप वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन बच्चों के लिए जो PSI में मेरिटोरियस थे और वो सामने नहीं आए अपना हक, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ कि उनको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। अब अगर कंपैरिजन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस को और बाकी JEE वगैरह को, तो ये बहुत ही गलत है सर। ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं चल रही है, A-B-B-C ये नहीं चल रहा है सर। यहाँ पे ये हमारा करियर है, हमारा फ्यूचर है सर। Pakistan's nefarious activities continue on the international border in Jammu and Kashmir. At 9:40 p.m. on Friday night, BSF personnel saw a flashing light from Pakistan's side in Kanachak area. On this, the alert soldiers of BSF opened fire. A flashing red light was seen from the Pakistan side in the Kanachak area at 9:40 p.m. on Friday, said that the border security force personnel opened fire on it. On Saturday, the troops launched a search operation in the area, which is still going on. After the rain, the weather has become pleasant in Jammu, due to which people have got relief from the heat, and the humidity has also reduced significantly. People have got relief from the scorching heat. Also, people expressed happiness over it and hoped that the weather would remain the same in coming days. उसके से लोगों को छुटकारा मिला है, थोड़ा सा बहुत बड़ी उमस थी, और आज के बारिश से किसानों को भी फ़ायदा होता है, और तरह तरह की सब्जियां वगैरह जो नए फील्ड में लगाई जाएंगी। देखा जाए तो अगर आम जनता की बात करें तो बारिश का मौसम तो एक सुहाना मौसम ही रहता है, और इस गर्मी के प्रकोप से अगर बच रहे हैं तो बारिश की वजह से ही बचते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा बारिश बंद हुई तो तापमान अपने आप बढ़ता जाता है। तो नेचुरली ये अगर देखें प्रकृति का एक बहुत अच्छा है, लगातार 2-3 दिन से तो लगातार बारिश होती जा रही है। किसानों की बात करें तो उनके लिए तो ये वाकई मतलब घी शक्कर की तरह हो गया, तो यही समय है जब वो कुछ काम कर सके अपने खेतों पे। हाँ, लगे लोगों की तरफ उनको थोड़ी सी तकलीफ़ तो ज़रूर रहती है। अगर हम स्वच्छता की बात करें, कभी कभी क्या होता है, नाले भी यहाँ बारिश की वजह से निकलते जाते हैं, साफ़ होते जाते हैं। हाँ, आम जनता को थोड़ी दिक्कत ज़रूर रहती है। Extreme off-roaders Kashmir flagged off 4x4 vehicles from Srinagar to Warwan, Kishtwar and other places. ADC Srinagar Hanif Balki along with other senior officials of Bharat Petroleum flagged off these vehicles. Let us tell you that the objective of this campaign is to find out the unexplored places of Jammu and Kashmir, so that these sites can be properly highlighted and help in promoting adventure tourism as well as adventure sports in future. At the same time, the participants present there also appreciated the efforts of the organizers and said that
The such events should be organized in future also so that more and more youths gets attracted towards adventure sports. ने भी परमिशन दे दी। जो छोटा मोटा हम सपोर्ट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और ये कि बेसिकली प्रमोशन है, ये ऐसी एक्टिविटी है जो कश्मीर में बहुत ज़रूरत है। यहाँ बर्फ़ होती है और 4x4 व्हीकल्स की ज़रूरत है। फिर जब बर्फ़ होती है तो गाड़ी यहाँ से वहाँ तक नहीं चली जाती है, या रेस्क्यू की ज़रूरत होती है। जब मैं सीओ गुलमर्ग था, मुझे याद है कि ये लोग यहाँ श्रीनगर से वापस आए गुलमर्ग, ताकि वहाँ में कोई गाड़ी तो फंसी नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज उन्होंने रेस्क्यू कर दिया। इन लोगों में जो इन एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, इनको बेसिकली इंसानियत का जज्बा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये देखने में आया है कि कहीं भी किसी इंसान को फंसा हुआ नहीं देखते हैं। तो ये मैं भी ज़ाती तौर चाहूँगा जो मेरे को देख रहे हैं आज, कि वो इसकी तरफ ध्यान दें। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आपको रूह को ताज़ा रखेगी। और ख़ासकर जो गलत एक्टिविटीज़ की तरफ आजकल चले गई, मैं फिर आपको वही वापस ले जाऊँगा कि मैं सोसाइटी की बात करूँगा कि जो चीज़ हमें ख़त्म कर रही है, किसी चीज़ गुर्बत से भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर ड्रग्स सोसाइटी में चला गया तो ये एक बहुत बड़ा आलमिया होगा जिससे निकलना मुश्किल होगा। इस सब के लिए हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। और छोटे बच्चे जो अननोइंगली वो बोलते हैं धोखे से इसमें फंस जाते हैं, उन हम सबको मेहनत करके उनको इस चीज़ से निकालना पड़ेगा। बेसिकली अगर मैं अपनी एसोसिएशन की बात करूं तो हमारा जो मेन मोटो है ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को एक्सप्लोर करना और हमारी एंटी ड्रग एक्टिविटीज़ रहती है, जिससे हमारा यूथ एडवेंचर स्पोर्ट की तरफ, नेचर की तरफ हम यूथ को लेना चाहते हैं। इससे हमारा टूरिज्म भी बूस्ट हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी थ्रू टूरिज्म मिल जाएगा। The Kashmir Traders and Manufacturers Federations condemned the government for the increase in GST on food products. Speaking on the occasion, KTMF chief spokesperson Hilal Ahmad Wandu said that the GST has been increased on many food items by the government, which has increased the burden for the common people on which the government needs to pay mercy, and the government should take such decisions keeping all the people present in the country in pity so that it doesn't have a bad effect on the lives of the people. सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये जो 5% GST काउंसिल ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया है, तो ये ट्रेड कम्युनिटी के लिए और ओवरऑल जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है उसके लिए ठीक नहीं है। उसकी वजह ये मैं बता दूंगा, ये जो 5% इन्होंने चढ़ाए हैं, ये फूड आइटम पे हैं। ये जो जितने भी फूड आइटम्स हैं, या जैसे कि हमारा पैक्ड दूध होता है, इन चीज़ों पे हैं। यानी कि कहने का मतलब है ये जो बिलो द पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, ये यहीं से शुरुआत की गई। जबकि अगर ये चढ़ाना ही था तो ये जो कॉरपोरेट हमारा सेक्टर है उसमें अगर चढ़ाते तो एक रेवेन्यू जनरेट होता उससे। इंस्टेड ऑफ जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले छोटे छोटे लोग ही होते हैं। ये जो ओवरबर्डन इन पे ही आ गया है, तो इसके लिए हम इसका वेलकम नहीं करते हैं, जो कि इसकी हम पुरजोर मजम्मत ही करते हैं। तो मगर ये चीज़ ठीक नहीं है। ओवरऑल अगर इकनॉमी को हमें ग्रोथ करना है तो ये चीज़ इसके लिए ठीक नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसीलिए थर्ड बार डिस्कशंस होता है। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ट्रेड कम्युनिटी से पूछ के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रेड कम्युनिटी से पूछ के लिए जाते तो शायद ये डिसीजन ठीक होता हमारी नज़रों में। जो जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग थी 28 तारीख और 29 तारीख को यहाँ पे होनी थी, बदकिस्मती से वो चंडीगढ़ में की गई। तो ये इसीलिए डिस्कशन होता है कि इसी बात पे होती है कि थर्ड बार डिस्कशन है, जो कि एक हमें लग रहा है जो कश्मीर के साथ, जो हमारे कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन जो वैली के 7 लाख ट्रेडर हैं, ये इनके साथ नाइंसाफ़ी है। In Renawari of Old Town Srinagar, a fire incident happened last night in which a house got burned. Let us tell you that 5 families used to live in this house, while due to the fire, the members of these 5 families have become homeless. While speaking on the occasion, all the victims appealed to the government to help them so that their problems can be reduced and they can get a home to live in. नाल कंप्लीट में 2 बजे नाल लगन गए हुशार नाल 2 बजे नाल चलान पे बुड़ो नाल कंट्रोल कह
लोग बनिस पोरस पे नार पत वारा वार वो हमिस पोर पे पता सोरे लपेटस मे न बचो कह चीज न चोर गर बसान फयाज अहमद शाह, नसीर अहमद शाह, गुलाम अहमद शाह, नूर मोहम्मद शाह चोर गर सोन गर मज बचो कहें तुम दिव नजर पान तुम खसो हूर तुम अच्छा कह चीज यह चीज सह चीज अच्छे चोर त्रे सोरे हरमिस पोरस मज हरिम पोर सोरे डैमेज तुम दिव नजर तथ मन क्या बचोमुत ना तुम हेकि पान वो तक सोरे वारे वनकस तुम वो पान मे नाव गुलाम रसूल शाह 12:30 बजे रस नार चोर वसान दो सोरे गो नुकसान वारिया सहार A large number of fruit growers from the valley participated in the fruit mandi Apple Town, Sopore. During this, the problems being faced by them were also highlighted, as well as the fruit growers also said that they will work more and more on their apple producer so that they can provide better quality in the market than the apple produced of other regions. During this, they also appealed to the LG administration to solve the problems at the earliest. गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो रोज काम बढ़ता जा रहा है। हमने इस वजह से क्योंकि 4 साल कार कर रही थी, बीच में जो अनरस्ट हुआ उसके बाद कोविड आ गया, हम उस तरह से नहीं मीटिंग कर सके, लेकिन आज हमने मीटिंग की थी जिसमें टोटल मेंबर जो फ्रूट मंडी के भी थे। हमने उस हवाले से किया कि इस साल इंशाल्लाह हमारी फसल भी अच्छी है और साफ भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, जिससे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया उससे हमारा जो इस साल का सीजन है बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन नेशनल हाईवे की वजह से बीच में हुआ था, लेकिन एलजी साहब के हम बहुत ही शुक्रगुजार जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके कि हमारे जो सेब की गाड़ियाँ वो रास्ते से जा रही है। और इस टाइम हमारा मेन इशू था कि मंडी में कौन से काम होनी चाहिए कि, तो और खासकर हमारा बारदाने का इशू है, जो बारदाने का रेट हाई हो चुका है। मैं आपकी वसादत से एलजी साहब से अपील करता हूँ कि वो उसमें इंटरवेन करें ताकि जो विनर मिनरल्स है जो फले पत्ते का इस्तेमाल करते हैं उससे हमारा बारदाना जो है वो हाई हो जाता है। उन पर बैन लगनी चाहिए और बैन से आने और उसको अच्छी तरह से काम करने दिया जाए ताकि जो भी इस पे रेट ज्यादा चढ़ जाता है ये सीधा ग्रोवर पे असर पड़ जाता है। So that's all for today's bulletin. Keep watching JKC's English Bulletin. Take care.